کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے؟ ہر میسج، ہر خاموشی، ہر بدلتا ہوا رویہ، کیا یہ سب صرف تمہیں کمزور کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ کبھی وہ حد سے زیادہ قریب آتا ہے، اتنا کہ تم خود کو خاص محسوس کرنے لگتی ہو، پھر اچانک وہی شخص بالکل دور ہو جاتا ہے جو کل تک ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھا، آج مصروف ہے، خاموش ہے، سرد ہے، اور تم خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہو، سوچتی ہو شاید تم نے کچھ غلط کہا، شاید تم زیادہ حساس ہو، شاید مسئلہ تم میں ہے۔ یہیں سے کھیل شروع ہوتا ہے، یہ جذبات کا کھیل ہے، پاور کا کھیل، کنٹرول کا کھیل۔ لیکن آج ہم یہ کھیل بدلنے والے ہیں، آج پاور واپس لینے والے ہیں، شور سے نہیں، لڑائی سے نہیں، خاموشی سے، عقل سے اور مضبوطی سے۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ سب کا وارث کی بات میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رشتوں اور انسانی نفسیات کو سادہ اور صاف انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں کسی کو برا ثابت کرنا مقصد نہیں، مقصد صرف شعور دینا ہے تاکہ آپ اپنے رشتوں میں پرسکون رہ سکیں۔ آج کا موضوع ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، اب گیم کیسے ختم کرنی ہے۔ یہ بات خاص طور پر خواتین کے لیے، لیکن مرد حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ کہ جذباتی کھیل صرف ایک جنس تک محدود نہیں ہوتے۔ کبھی نظر سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، کبھی خاموشی سے سزا دی جاتی ہے، کبھی الزام لگا کر آپ کو دفاعی بنایا جاتا ہے، اور کبھی کنفیوژن میں رکھ کر تمہاری خود اعتمادی کم کی جاتی ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے، کنٹرول۔ آج ہم ایسے اصول سیکھیں گے جو تمہیں جذباتی کمزوری سے نکال کر ذہنی مضبوطی دیں، تمہیں سکھائیں گے کہ رد عمل نہیں، توازن طاقت ہے، اور سب سے اہم، تمہیں تمہاری اپنی ویلیو یاد دلائیں گے۔ آخر میں تمہیں ایک چھوٹا سا عملی طریقہ بھی دوں گا جسے تم ہر بار استعمال کر سکو گی جب تمہیں محسوس ہو کہ کوئی تمہارے ذہن اور دل پر کھیل کھیل رہا ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ اول۔ پہلے سمجھو کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کسی بھی کھیل کو ختم کرنے سے پہلے اس کے اصول سمجھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یہی نہ معلوم ہو کہ سامنے والا کر کیا رہا ہے تو تم ہر بار صرف رد عمل دیتی رہو گی، اور رد عمل دینے والا ہمیشہ کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے۔ بات سیدھی ہے، جذباتی کنٹرول کبھی اچانک نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، اعتماد کے نام پر، محبت کے نام پر، قربت کے نام پر۔ اکثر ایسا انسان 3 طریقے استعمال کرتا ہے۔ اگر تم یہ 3 پیٹرن پہچان لو تو آدھی گیم وہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلے آسمان پر بٹھانا پھر زمین پر گرانا۔ شروع میں وہ تمہیں خاص محسوس کرواتا ہے، حد سے زیادہ لمبی باتیں، مسلسل میسیجز، تعریفیں۔ میں نے کبھی کسی سے اتنا کنیکٹ محسوس نہیں کیا، تم باقی سب سے مختلف ہو، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ یہ باتیں سن کر تمہارا دل کھلنے لگتا ہے، تم اپنے سیفٹی گارڈ نیچے کر دیتی ہو، تم یقین کرنے لگتی ہو کہ شاید اس بار سچ ہے۔ پھر اچانک تبدیلی، جو شخص ہر وقت موجود تھا اب مصروف ہے، جو فوراً جواب دیتا تھا اب گھنٹوں بعد جواب دیتا ہے، جو تمہیں اہم بناتا تھا اب تمہیں شک میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تبدیلی اتفاق نہیں ہوتی، یہ ایک نفسیاتی ٹیکنیک ہے۔ پہلے تمہیں جذباتی طور پر عادی بنایا جاتا ہے، پھر وہی توجہ واپس لے لی جاتی ہے، اور تم دوبارہ وہی پہلی والی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہو۔ تم زیادہ سمجھوتا کرتی ہو، زیادہ وضاحت دیتی ہو، زیادہ معاف کرتی ہو، کیونکہ تم اس پہلے والے ورژن کو واپس لانا چاہتی ہو۔ لیکن سچ یہ، وہ پہلا ورژن مستقل نہیں تھا، وہ صرف تمہیں باندھنے کا طریقہ تھا۔ نمبر 2، تمہارے احساس کو جھٹلانا۔ اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، جب تم سوال اٹھاتی ہو، جب تم کہتی ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ تم زیادہ سوچتی ہو، تم ہر بات کو مسئلہ بنا دیتی ہو، تم بہت حساس ہو گئی ہو۔ شروع میں تم دفاع کرتی ہو، پھر وضاحت دیتی ہو، پھر خود کو سمجھانے لگتی ہو کہ شاید واقعہ میں ہی غلط ہوں۔ یہ سب سے خطرناک جگہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہی احساسات پر شک کرنے لگے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، شاید تمہاری توقعات زیادہ ہیں، شاید تمہیں ہی بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کنٹرول مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم اپنی سچائی پر یقین نہیں رکھتی، اور جو شخص اپنی سچائی پر یقین کھو دے وہ آسانی سے دوسروں کی کہانی مان لیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم بار بار الجھن محسوس کر رہی ہو، اگر تم بار بار بے چین ہو رہی ہو، اگر تم بار بار خود کو غلط ثابت کر رہی ہو، تو مسئلہ ہمیشہ تم نہیں ہوتی۔ احساسات کمزوری نہیں ہوتے، وہ سگنل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خوف اور امید کے درمیان جھولا۔ تیسرا اور سب سے طاقتور طریقہ ہوتا ہے تمہیں ایک جذباتی جھولے میں بٹھا دینا۔ کبھی چھوڑنے کی دھمکی، اگر تم ایسے ہی رہی تو میں چلا جاؤں گا۔ کبھی مستقبل کا خواب، بس تھوڑا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی مکمل نظر انداز،
कभी हद से ज्यादा ख्याल। तुम न मुकम्मल खुश होती हो न मुकम्मल आजाद। तुम बस इंतजार में रहती हो, हर दिन सोचती हो कि आज वो कैसा होगा, पुरजोश, गरम, सर्द, नाराज, प्यारा। ये गैर यकीनी कैफियत दिमाग को आदी बना देती है, क्योंकि जब कभी मोहब्बत मिलती है तो वो ज्यादा कीमती लगती है और तुम उसी कभी कभी के लिए सब बर्दाश्त करती रहती हो। लेकिन ये मोहब्बत नहीं होती, ये कंट्रोल होता है। तुम खौफ और उम्मीद के बीच लटकती रहती हो, और जब इंसान मुसलसल खौफ में हो तो वो अपने म्यार कम कर देता है। वो सोचता है बस ये शख्स ना जाए, चाहे मुझे ही बदलना पड़े, चाहे मुझे ही झुकना पड़े। याद रखो, जो शख्स खुद को कम समझता है वही दूसरों को अपनी कमजोरी हथियार बनाने देता है। जब तुम अंदर से यकीन कर लेती हो कि तुम काफी नहीं हो, तो कोई भी आकर तुम्हें यकीन दिला सकता है कि तुम वाकई काफी नहीं हो। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कंट्रोल हमेशा वहाँ कामयाब होता है जहाँ खुद एतमादी कम हो। जैसे ही तुम पैटर्न पहचान लेती हो, जैसे ही तुम समझती हो कि ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खेल है, उसी लम्हे ताकत वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि शऊर सबसे पहला दिफा है। अब सवाल ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, असल सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाली हो। अब आते हैं असल ताकत की तरफ। पार्ट 2, नतीजे से आजादी। पहला असूल, नतीजे से आजादी। रिश्ता रहे या न रहे, वो रहे या चला जाए, मैं अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करूंगी। अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बस वो नाराज ना हो जाए, बस वो मुझे छोड़कर न चला जाए। यही खौफ उसे ताकत देता है। जब तुम हर बात उस डर से कहती हो कि कहीं वो दूर न हो जाए, तो तुम ऐसा ऐसा खुद से दूर हो जाती हो। सोचो, क्या वाकया तुम्हारी पूरी जिंदगी एक इंसान के फैसले पर खड़ी है? जब तुम दिल में खामोशी से ये फैसला कर लेती हो कि अगर वो चला भी गया तो मैं खत्म नहीं हो जाऊंगी, मैं टूटूंगी नहीं, मैं संभल जाऊंगी, इसलिए तुम्हारी तवानाई बदल जाती है, तुम्हारी बात करने का अंदाज बदल जाता है, तुम्हारी आंखों का एतमाद बदल जाता है, तुम्हारा खौफ कम हो जाता है, और जहाँ खौफ कम हो जाए वहाँ कंट्रोल भी कमजोर हो जाता है। अमली कदम बहुत सादा है। हर 10 मिनट बाद उसका आखिरी ऑनलाइन देखना बंद कर दो। हर ताखीर को अपनी बेवकूफी की अलामत समझना बंद कर दो। हर खामोशी को जाती हमला बनाना बंद कर दो। अपनी जिंदगी के बाकी सतून मजबूत करो, घर, काम, सेहत, इबादत, दोस्त, अहदाफ। जब तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द नहीं घूमती तो वो तुम्हारी दुनिया का मरकज भी नहीं रहता। और याद रखो, जो औरत नतीजे से आजाद हो जाती है उसे खोने का खौफ दूसरों को होता है, उसे नहीं। पार्ट 3, सोची समझी खामोशी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफाई दो, वजाहत दो, अपना मौकिफ साबित करो, अपनी बात क्लियर रखो। लेकिन जज्बाती खेल में ज्यादा वजाहत अक्सर कमजोरी बन जाती है। कभी खामोशी सबसे ज्यादा मजबूत जवाब होती है। जो शख्स खेल खेल रहा हो वो तुम्हारे रद्द अमल से ताकत लेता है। लंबे पैराग्राफ के मैसेज लिखना, बार बार की वजाहत, आंसू बहाना, मिन्नत समाजत, ये सब उसे पैगाम देते हैं कि वो तुम्हारे जज्बात कंट्रोल कर सकता है। अब पैटर्न बदलना होगा। अब अगर वो कहे कि तुम बदल गई हो तो आपने पुराना जवाब नहीं देना। लंबी वजाहत, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं मसरूफ थी, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अब आपने एक नए तरीके से जवाब देना है। पुरसुकून, लंबी सांस और मुख्तसर जवाब, मैं बस अपनी तरजीहात संभाल रही हूँ, बस कोई इजाफी दलील नहीं। अगर वो कुछ दिनों की खामोशी के बाद वापस आए तो आपका पुराना पैटर्न क्या था? फौरन जवाब देना और उसे माफ कर देना। लेकिन अब नहीं, आप उसे फौरन जवाब ना दें, पहले अपनी मसरूफियात को मुकम्मल करो, अपनी जिंदगी को तरजीह दो, फिर सादा और मुतवाजन जवाब दो। न शिकायत, न जज्बाती बोझ। याद रखो, तुम्हारी तवज्जो इनाम होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं। जो चीज हर वक्त आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। सोची समझी खामोशी कमजोरी नहीं है, यह अपने जज्बात की हिफाजत है। और जो अपने रद्द-ए-अमल पर काबू पा ले वही असल में ताकतवर होता है। पार्ट 4, जज्बाती फासला। जज्बाती फासला मोहब्बत खत्म नहीं करता। ये दिल बंद करना नहीं है, ये सर्द होना नहीं है, ये खुद को बचाना है। तो मोहब्बत कर सकती हो, खलूस से कर सकती हो, लेकिन बेइज्जती कबूल नहीं कर सकती। फर्क समझो, मोहब्बत में नरमी होती है लेकिन खुददारी भी होती है। जब वो सर्द हो जाए तो तुम घबरा कर वार्म बिहेव मत करो। वो कम बात करे तो तुम दुगनी तवज्जो मत दो। वो दूर हो तो तुम खुद को उसके कदमों में मत रख दो। यही वो लम्हा होता है जहाँ जज्बाती फासला जरूरी होता है। अपने आप को रोको, सांस लो, मुशाहिदा करो। जब वो वादा करे, मुस्तकबिल के ख्वाब देख, तो सिर्फ अल्फाज मत सुनो, अमल देखो। क्या उसका रवैया मुस्तकिल है? क्या उसकी बातों और कामों में अमांगी है? अपने दिल से एक सादा सवाल पूछो, क्या मैं इस इंसान को वैसा कबूल कर सकती हूँ जैसा ये अभी है, न जैसा ये पहले था, न जैसा ये बनने का वादा कर रहा है, बल्कि जैसा ये आज है। अगर जवाब नहीं है तो खुद को बचाना फर्ज है। जितना ज्यादा तुम एक इंसान पर इन्हिसार करोगी उतना ही वो तुम्हारे जज्बात पर असर डाल सकेगा, और जितना कम इन्हिसार होगा उतना कम कंट्रोल होगा। जज्बाती फासला दीवार नहीं है, ये एक हद है, और हद कमजोर लोग नहीं बनाते, मजबूत लोग बनाते हैं। पार्ट 5, रिवर्स वैलिडेशन।
अब गेम सीधी नहीं उल्टनी है। अब वो तुम्हें वैलिडेशन दे और तुम फौरन जज्बाती हो जाओ, नहीं। अक्सर क्या होता है, वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा वक्त देता है, एक दो मीठे जुमले कहता है, और तुम हद से ज्यादा तारीफ, फौरन शुक्रगुजारी, फौरन पहले से ज्यादा झुकाओ। यही जगह है जहाँ ताकत वापस उसके पास चली जाती है। अब पैटर्न बदलो, तारीफ दो लेकिन मुतवाजन, जो जितना दे उतना ही वापस पाए। वो वक्त न दे तो तुम दुगना वक्त मत दो, वो एहतराम न दे तो तुम हद से ज्यादा बर्दाश्त मत करो। रिवर्स वैलिडेशन का मतलब बदतमीजी नहीं है, ये जज्बाती तवाजुन है। अब तुम पीछे नहीं भागोगी, तुम आईना बनोगी, जितना सामने से आएगा उतना ही वापस जाएगा। अगर रवैया गैर संजीदा हो तो सुकून से कहो मुझे ये रवैया कबूल नहीं। अगर आप संजीदा नहीं तो हम दोनों का वक्त जाया हो रहा है। बस न चीखना, न लड़ना, न लंबी बहस करना, और फिर अपने अल्फाज पर कायम रहना। क्योंकि अगर तुमने हद तो मुकर्रर कर दी लेकिन उस पर खुद ही अमल न किया तो अल्फाज की कीमत खत्म हो जाती है। याद रखो, अल्फाज से ज्यादा अमल बोलता है, और जो शख्स अपने अमल में मजबूत हो वही असल में खेल बदल देता है। स्टोइक अहद, अंदरूनी मजबूती का तरीका। जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम दोबारा उसी पुराने खेल में खींची जा रही हो, वही बेचैनी, वही इंतजार, वही दिल की धड़कन तेज होना, तो रुक जाओ। ये वो लम्हा है जहाँ या तो तुम दोबारा पुराने पैटर्न में जाओगी या खुद को नई सिमत दोगी। ये 4 कदम याद रखो, सादा है लेकिन ताकतवर है। नंबर 1, फौरन रद्द अमल नहीं। सबसे पहले फोन एक तरफ रखते हैं, मैसेज आया, दिल घबराना शुरू हो गया, उंगली फौरन कीबोर्ड पर गई, रुको, गहरी सांस लो, 1 नहीं 3 बार अपने आप से ऐसा से कहो, मेरा फौरी रद्द अमल मेरी कमजोरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेजी ताकत है, लेकिन जज्बाती मामलों में तखीर ताकत होती है। तुम्हारा पहला रद्द अमल अक्सर खौफ से आता है, जज्बात से आता है। दूसरा रद्द अमल शऊर से आता है। दूसरा रद्द अमल शऊर से आता है। खुद को कम से कम 30 मिनट दो। अगर मामला हसास है तो चंद घंटे। तुम देखोगी कि जो जुमला तुम फौरन भेजना चाहती थी वो कुछ देर में जरूरी नहीं लगेगा। नंबर 2, खुद को याद दिलाओ। अब आईने के सामने जाओ, अपनी आंखों में देखो, खुद से नजरें न चुराओ, और 3 जुमले बुलंद आवाज में कहो, मैं काबिल एहतराम हूँ, मेरे एहसासात सच हैं, मैं चाहूँ तो इस खेल से निकल सकती हूँ। शुरू में ये जुमले मसनूई लगेंगे, दिल कहेगा कि तुम खुद को बहला रही हो, लेकिन याद रखो दिमाग वही मानता है जो बार बार सुनाया जाए। जब तुम खुद को याद दिलाती हो कि तुम कमजोर नहीं, तो ऐसा ऐसा तुम्हारा अंदर भी यही मानने लगता है। ये खुद को धोखा देना नहीं है, ये खुद को सीधा खड़ा करना है। नंबर 3, खौफ नहीं इज्जत से फैसला। अब सवाल सादा है, जवाब देना है। अगर देना है तो क्यों? क्या तुम खौफ से जवाब दे रही हो, इस डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे? अगर जवाब खौफ है तो अभी मत भेजो, ताखीर करो, अपने आप को संभालो। लेकिन अगर जवाब वकार से है, अगर तुम सुकून में हो, अगर तुम वाज़े और मुख्तसर बात कर सकती हो, तो फिर भेजो। न लंबा पैगाम, न सफाई, न इल्जाम, साफ, मुख्तसर, मुतवाज़न। वकार में ताकत होती है, खौफ में बेचैनी। नंबर 4, रोजाना 2 मिनट लिखो। दिन के आखिर में सिर्फ 2 मिनट निकालो। कोई बड़ी डायरी नहीं चाहिए, कोई लंबा मजमून नहीं, बस 2 सवाल लिखो। आज मैंने कहाँ खुद को कम समझा, आज मैंने कहाँ खुद को बचाया। ये छोटा सा अमल तुम्हें आईना दिखाएगा। तुम देखोगी कि कभी तुम पुराने पैटर्न में चली जाती हो और कभी तुम खुद को रोक लेती हो। हर बार जब तुम खुद को बचाओगी तुम्हारा अंदर मजबूत होगा। ताकत एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे फैसलों से बनती है। ये स्टोइक अहद दरअसल यही है, मैं फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दूंगी, मैं खुद को याद रखूंगी, मैं खौफ से नहीं इज्जत से फैसला करूंगी और हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगी। ऐसा ऐसा खेल खत्म हो जाएगा और तुम अंदर से मजबूत हो जाओगी। दोस्तों, वो तुम्हें तब तक कंट्रोल करेगा जब तक तुम अंदर से ये मानती रहोगी कि तुम कमजोर हो। कंट्रोल बाहर से शुरू नहीं होता, वो अंदर के शक से शुरू होता है। इस खौफ से तुम अकेली नहीं रह सकती, इस यकीन से कि तुम्हारी कदर किसी इंसान से जुड़ी हुई है। आज ये यकीन बदल दो, आज फैसला करो। तुम्हारी वैल्यू किसी एक शख्स के रवैये से तय नहीं होती, न उसके मैसेज से, न उसकी तवज्जो से, न उसके जाने या रहने से। जब तुम नतीजे से आजाद हो जाती है तो खौफ कम हो जाता है। जब तुम सोची समझी खामोशी अपनाती हो तो तुम्हारा रद्द अमल तुम्हारे काबू में आ जाता है। जब तुम जज्बाती तवाज़ुन रखती हो तो कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता, और जब तुम वाज़े हदूद मुकर्रर करती हो तो लोग सीख जाते हैं कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। यही चीजें गेम खत्म करती हैं, न चीखना, न बदला लेना, न साबित करना, बस अंदर से मजबूत हो जाना। याद रखो, जो तुम खुद के साथ करोगी दुनिया भी वही करेगी। अगर तुम खुद को नजरअंदाज करोगी तो लोग भी तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। अगर तुम खुद को इज्जत दोगी तो लोग भी तुम्हें इज्जत देना सीखेंगे। आज से खुद के साथ इज्जत से पेश आओ, अपने जज्बात की हिफाजत करो, अपनी हदूद कायम रखो और फिर खामोशी से देखो कि गेम कैसे बदलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।